Hello everyone, my name is Shweta Sunil Jadhav. I'm assistant professor in botany at ACS College, Lanza, Ratnagiri. In today's video, I'm going to discuss about biotic environment and interactions. So let's start the video. The biotic environment includes all living things and the study of it involves an understanding of the complex ways organisms interact with each other. So biotic environment में सारे living components हैं, ओके और बायोटिक एनवायरनमेंट के स्टडी में वी विल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वेज ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट ओके इंटरेक्शन देखेंगे द पॉपुलेशन ऑकरिंग टुगेदर इन एन एरिया इंटरेक्ट्स विद ईच अदर इन सेवरल वेज ओके इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट वेज में है प्रेजेंट इन द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स these interaction are generally referred to as biotic factors okay so generally इन्हें biotic factors बोलते हैं interactions को MC Doggle listed all beneficial as well as harmful effects or association of organism under single concept that is symbiosis. ओके इंटरेक्शन के बीच में जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स शो हो रहे हैं उसे डॉगल ने एक ही कंसेप्ट में कंसेप्ट दिया है दैट इज सिम्बायोसिस. So Doggle categorized the effects of interaction of biotic factors that is living organism into disjunctive symbiosis and conjunctive symbiosis. So where the association of organism are not constantly in contact are known as disjunctive symbiosis. तो यहाँ पे disjunctive symbiosis में जो association है okay there will be no physical union. Then dissimilar organism living in contact with each other is termed as conjunctive symbiosis. सो डिसिमिलर दोनों भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है और ये क्या हो रहे हैं इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं सो दैट इज कंजंक्टिव सिम्बायोसिस. सो एग्जांपल ऑफ कंजंक्टिव सिम्बायोसिस इज लाइकेन. ओके सो लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई दोनों भी डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म है और एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं. देन को एक्शंस बिटवीन स्पीशीज हैव बीन एलैबोरेटेड बाय बर्कहोल्डर. So Burkholder on the basis of several combinations 0, plus and negative have developed 9 types of interaction. So Burkholder ने combination बनाए with the help of 0, plus and minus symbol and इसने 9 type of interactions okay categorize किए. So 0 indicates no significant interaction, plus stand for growth, survival or beneficial to the other population and minus stands for the population growth inhibition. In this table, we can see 9 types of interaction. First interaction is neutralism. Both the species showing 0 symbol. That means there will be no significant interaction and general nature of the interaction is neither population affects the other. Okay, तो न्यूट्रलिज्म में दोनों भी स्पीशीज सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन शो नहीं कर रही है और उनका इंट्रैक्शन है उसमें दोनों के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. Okay, so this is neutralism. Then second one is competition and third interaction is also competition and species both the species showing minus sign okay and this stand for the population growth inhibition. दोनों भी population की growth यहाँ पे inhibit हो रही है stop हो रही है and the general nature of the interaction for both the competition is for first one that is a direct inhibition of each species by the other and in second one it's showing indirect inhibition when common resource is in short supply. ओके सो इसका मतलब क्या है दोनों भी स्पीशीज यहाँ पे क्या शो कर रही है पॉपुलेशन ग्रोथ इनहिबिशन दोनों भी स्पीशीज की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है. बट जनरल नेचर देखेंगे इंट्रैक्शन के इंट्रैक्शन में तो फर्स्ट कॉम्पिटिशन में इट्स शोइंग इनडायरेक्ट इनहिबिशन. इनडायरेक्ट इनहिबिशन मतलब क्या है सपोज दो ऑर्गेनिज्म है ओके वो किसके लिए compete करेंगे फॉर द रिसोर्स. ओके तो रिसोर्स का क्या होगा यहाँ पे फूड होगा ओके या फिर स्पेस या फिर मेट दोनों भी रिसोर्स के लिए compete करेंगे. बट डायरेक्ट इनहिबिशन में क्या होगा ये जो रिसोर्स है ये तो अवेलेबल है रिसोर्स अवेलेबल है फिर भी ये दोनों भी स्पीशीज दोनों भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपटीशन में जो जनरल नेचर ऑफ इंट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्ट इनहिबिशन डायरेक्ट कंपटीशन करके एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. देन थर्ड वाला जो कंपटीशन है उसमें क्या हो रहा है इनडायरेक्ट इनहिबिशन हो रहा है. सपोज यहाँ पे जो रिसोर्स है ओके मतलब फूड है एग्जाम्पल तो यहाँ पे जो रिसोर्स है वो क्या है लिमिटेड है इसलिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है उसके ऊपर जो दोनों भी पॉपुलेशन डिपेंड है ओके उनको फूड लिमिटेड मिल रहा है
और इस वजह से दोनों में कंपटीशन हो रहा है और ये कंपटीशन इनडायरेक्टली है. ओके. देन fourth interaction is amensalism. Amensalism, species 1 showing negative sign, that is there will be growth inhibition, and second species showing 0, that indicates no significant interaction. So amensalism में जो population species 1 है वो inhibit हो रही है और दूसरे species के ऊपर इसका कोई भी effect नहीं हो रहा है. Okay. So species 2 is not affected. Then parasitism. Parasitism में क्या हो रहा है, स्पीशीज़ 1 को बेनिफिट मिल रहा है एंड स्पीशीज़ 2 शोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ इनहिबिशन. ओके. तो पैरासिटिज्म में एक पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा. पैरासाइट साइज में छोटा होगा एंड होस्ट विल बी द लार्जर इन साइज. तो यहाँ पे स्पीशीज़ 1 उसको बेनिफिट मिल रहा है पैरासाइट को, और स्पीशीज़ 2 है उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है. देन प्रिडेशन. प्रिडेशन में एक प्रिडेटर होगा और दूसरा प्रे होगा. प्रिडेटर क्या होगा, शिकारी, एंड प्रे होगा शिकार, उसका शिकार. सो स्पीशीज़ 1 शोइंग प्लस साइन, दैट इज स्पीशीज़ 1 को बेनिफिट मिल रहा है एंड स्पीशीज़ 2 शोइंग माइनस साइन, दैट इज देयर विल बी पॉपुलेशन ग्रोथ इनहिबिशन. ओके. तो यहाँ पे जो प्रिडेटर है वो साइज में बड़ा होगा, larger in size, and prey छोटा. In commensalism, population 1 is getting benefit and population 2 is not affected. Okay. In photocooperation and mutualism, both the species are getting benefit, but there is a little difference in general nature of interaction. Okay. In photocooperation, the interaction favors to the both, दोनों को भी benefit मिल रहा है, but this interaction is not obligatory, necessary नहीं है interaction. Okay. Without interaction they can survive. देन म्यूचुअलिज्म में जो इंट्रैक्शन है दैट इज ऑब्लिगेटरी, मीन्स फॉर देयर सर्वाइवल दे नीड टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ओके. सो दैट इज ऑब्लिगेटरी. ऑर्डन हैज एनालाइज द अफोरसेड इंट्रैक्शन इनटू 2 मेन ग्रुप्स. 2 टाइप्स के इंट्रैक्शन यहाँ पे ऑर्डन ने एनालाइज किए हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंट्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इंट्रैक्शन. पॉजिटिव इंट्रैक्शन मीन्स पॉपुलेशन हेल्प वन अनदर. पॉजिटिव इंट्रैक्शन में क्या होगा कि दोनों भी पॉपुलेशन है, 2 ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे. ओके. सो पॉजिटिव इंट्रैक्शन विल इंक्लूड कॉमेंसलिज्म, फोटोकोऑपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म. देन नेगेटिव इंट्रैक्शन में मेंबर्स ऑफ वन पॉपुलेशन में ईट मेंबर्स ऑफ अदर पॉपुलेशन. तो नेगेटिव इंट्रैक्शन में एक पॉपुलेशन का जो मेंबर है वो दूसरे मेंबर को ईट करेगा, दूसरे पॉपुलेशन के मेंबर को ईट करेगा. सो they compete for the food and interfere with other population. Okay. तो ये जो नेगेटिव इंट्रैक्शन में इंट्रैक्शन है, ओके, ये क्यों हो रहा है, फॉर द फूड, ओके, फॉर द रिसोर्स. सो इट विल इंक्लूड प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन एंड एंटीबायोसिस. ठीक है. पॉजिटिव इंट्रैक्शंस when population help one another and either one or both species are benefited, the interaction are known as positive interaction. तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में दोनों भी स्पीशीज हैं, दोनों भी पॉपुलेशन है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, एक या दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है. सो दीज टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस आर नोन एज पॉजिटिव इंट्रैक्शन. द बेनिफिट मे बी इन रिस्पेक्ट टू शेल्टर, फूड, सबस्ट्रेटम और ट्रांसपोर्ट, एंड एसोसिएशन में भी कंटिन्यूस और ट्रांजिटरी. तो यहाँ पे बेनिफिट है वो इन रिस्पेक्ट टू शेल्टर, फूड या सबस्ट्रेटम होगा या फिर ट्रांसपोर्ट होगा, और इनका जो एसोसिएशन है, इंट्रैक्शन है, वो कंटिन्यूस होगा या फिर ट्रांजिटरी. ओके. ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, थोड़ी देर के लिए. देन ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, या फिर ऑब्लिगेट होगा इंट्रैक्शन, मतलब नेसेसरी होगा इंट्रैक्शन, या फिर फैकल्टेटिव, अगर इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है, दैट इज फैकल्टेटिव. एंड द 2 पार्टनर्स मे बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट, दोनों पार्टनर क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगे, और वन ऑफ देम मे बी लिव विद इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द अदर और अटैच टू इट्स सरफेस, या फिर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक एरिया में रहेगा या फिर उससे अटैच रहेगा. Mutualism is a positive type of interaction. The interaction is obligatory and interdependent for their survival is termed as mutualism. Okay. So organism के survival के लिए interaction है वो ज़रूरी है, obligatory है. Okay. And it is interdependent, एक दूसरे के ऊपर dependent है. So it benefits both the species, दोनों को भी यहाँ पे benefit हो रहा है. So we have some example of mutualism.
So first one is pollination by animals. Okay, कुछ एनिमल्स है लाइक बीज, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, वो क्या करते हैं, अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं. ओके, सो इट विल डिराइव देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर. ओके, इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पोलन्स एंड ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन. और इससे प्लांट को बेनिफिट क्या मिलता है, पॉलिनेशन होता है. ओके, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. ओके, तो यहाँ पे दोनों को भी बेनिफिट हो रहा है. So next example is dispersal of fruits and seeds. Generally animals disperse the fruits and the seeds. The birds eat the fruits and the seeds contained in the fruits are left through the excrement at the different places. Okay, generally birds क्या करते हैं, birds and other animals fruit को consume करते हैं और fruit में जो seeds present होते हैं वो क्या करते हैं, through the excrement बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट करते हैं. ओके, तो इससे प्लांट को बेनिफिट क्या होता है कि उसके सीड्स डिस्पर्स हो रहे हैं अलग अलग जगह पे. ओके, और जो एनिमल है उसे खा रहा है, उसे भी बेनिफिट हो रहा है, फूड मिल रहा है उसे. देन थर्ड एग्जांपल इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर. ओके, द बैक्टीरियम राइजोबियम, एक बैक्टीरियम है राइजोबियम विच फॉर्म्स द नोड्यूल्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स है, उनके रूट्स में ये नोड्यूल्स फॉर्म करता है. ओके, इससे बैक्टीरिया को क्या मिलता है, बैक्टीरिया को फूड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और इन रिटर्न ये जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को फिक्स किया हुआ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. एंड वी नो दैट कि नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें नाइट्रोजन इज नेसेसरी. तो यहाँ पे बैक्टीरिया को बेनिफिट मिल रहा है और प्लांट को भी बेनिफिट मिल रहा है. सो कॉमेंसलिज्म इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंट्रैक्शन. द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज गेट बेनिफिट, एक स्पीशीज को यहाँ पे ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज विल बी नॉट अफेक्टेड, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, नाइदर उसे हार्म हो रहा है नाइदर उसे बेनिफिट मिल रहा है. ओके, सो वी हैव अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ऑर्किड एंड मैंगो ट्री. ओके, ऑर्किड इज अ एपिफाइट. एपिफाइट मीन्स grows on the surface and derive its moisture and nutrients from the air, rainwater or from debris accumulating around it. ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्किड है वो मैंगो ट्री के सरफेस के ऊपर ग्रो हो रहा है. उसे ओनली मैंगो ट्री का जो सरफेस है वो उसे एज अ प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके, उससे क्या हो रहा है, ऑर्किड को प्लेस मिल रहा है, ऑर्किड को बेनिफिट हो रहा है, बट मैंगो ट्री के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, मैंगो ट्री को कुछ हार्म नहीं हो रहा है उससे, या फिर मैंगो ट्री को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉमेंसलिज्म. अनदर एग्जाम्पल इज कैटल, इग्रेड एंड ग्राजिंग कैटल. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में नॉर्मली जो ग्रेजिंग कैटल है उनके अराउंड कुछ इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं. ओके, और इन इंसेक्ट पे ये जो इग्रेट है वो फोराज करते हैं, उन्हें खाते हैं. तो यहाँ पे इग्रेट को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जब वो कैटल ग्रेजिंग कर रहा है, ओके, तभी जो इंसेक्ट उसके अराउंड इंसेक्ट है वो एज अ फूड इग्रेट को मिल रहे हैं. तो यहाँ पे इग्रेट को तो बेनिफिट हो रहा है, बट जो कैटल है उसे कुछ हार्म नहीं हो रहा है या फिर उसे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. सो दिस इज अ कॉमेंसलिज्म. Okay, a common cells which lives upon the host is called as ectocommon cells. Okay, ऐसे जो common cells है जो अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं उसे बोलते हैं ectocommon cells. Then next positive interaction is proto cooperation. So proto cooperation में दोनों भी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है. Okay, so this is a positive relationship between population mutually benefiting each other has been termed as proto cooperation. So such association of population is non obligatory mutualism. म्यूचुअलिज्म में हमने देखा था कि जो इंट्रैक्शन था, एसोसिएशन था, वो ऑब्लिगेटरी था, नेसेसरी था. पर यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है दैट इज नॉट नेसेसरी. ओके, विदाउट दिस इंट्रैक्शन दे कैन सर्वाइव. So this is non-obligatory. Then example of this is sea anemone. Okay. Admesia palliata. Admesia palliata is a species of sea anemone which is attached to the shell of the hermit crab. Hermit crab के shell के ऊपर खुद को attach कर लेता है sea anemone. ओके, तो इससे क्या मिलता है कि जो सी एनिमोन है वो कैरी होता है, जैसे जैसे हर्मिट क्रैब लोकोमोशन कर रहा है वैसे वैसे सी एनिमोन उसके ऊपर खुद को अटैच करके क्या हो रहा है, खुद भी मूव हो रहा है. तो उससे सी एनिमोन को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसे फ्रेश फीडिंग साइट्स मिल रहे हैं. ओके, और इससे क्रैब को क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्रैब अपने एनिमीज से प्रोटेक्टेड रह रहा है. ओके, उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है क्रैब को. So this is a proto cooperation and there is little difference between mutualism and proto cooperation. Okay. So second category which is given by the Odum is
antagonism or negative interaction. So negative interaction will show relationship between members of different species in which one or both harmed. Okay, so this has been referred to as a negative interaction. इसे antagonist या फिर negative interaction बोलते हैं क्योंकि दोनों भी species एक या दोनों species को क्या हो रहा है यहाँ पे harm हो रहा है. So the relationship of antagonism include antibiosis, parasitism, predation and competition. Antibiosis. Through the production of some substance or environmental condition due to metabolic pathways, there is a death of one organism by another and this is termed as antibiosis. तो यहाँ पे एंटीबायोसिस में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसे कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू देयर मेटाबॉलिक पाथवेज. उससे क्या हो रहा है कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ इसका इंट्रैक्शन हो रहा है उसकी डेथ हो रही है. दिस इज एंटीबायोसिस. So production of chemicals which are antagonist to microbes have been referred to as antibiotics. ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे एंटागोनिस्ट केमिकल को सिक्रीट करते हैं और माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं. सो उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. देन बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड फंजाई प्रोड्यूस अ गुड डील ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस. ओके, जो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर. सो अनदर टाइप ऑफ नेगेटिव इंट्रैक्शन इज पैरासिटिज्म. A parasite is the organism living on or in the body of another organism and deriving its food from its tissue. So जो पैरासाइट होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है और उसका जो फूड है वो उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज से डिराइव करता है. A galaxy of plants and animals are parasites in their mode of existence. Okay, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स है which is act like a parasite. So we have example of Cuscuta. So species of Cuscuta, a parasitic plant that is commonly growing on hedge plant, has lost its chlorophyll. They depend for nourishment on the other plant. Okay, so Cuscuta की एक species है उसके okay, so उसके अंदर जो chlorophyll है वो एब्सेंट है और ऑब्वियसली क्लोरोफिल एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा प्लांट. तो नरिशमेंट के लिए ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है और उस प्लांट से अपना नरिशमेंट लेता है. ओके. प्रेडेशन. प्रेडेटर इज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म विच किल्स एंड ईट एन इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज. प्रेडेटर कौन होगा, शिकारी, जो क्या करेगा अपने प्रे को किल करेगा और उसे खाएगा. दैट इज प्रेडेशन. सो देयर आर सम प्लांट्स कार्निवोर्स लाइक फंजाई विच फीड अपॉन द अदर एनिमल. कुछ प्लांट्स हैं जो कार्निवोरस होते हैं लाइक फंजाई जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. सो स्पीशीज लाइक डक्टेला, डक्टिलारिया, एंथ्रोबॉट्रियस, जूफैगस एक्सेट्रा कैप्चर द इंसेक्ट एंड अदर वर्म लाइक एनिमल्स. ओके, सो ये कुछ स्पीशीज है जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और उसे खाते हैं. दीज आर द एंड अदर वर्म लाइक एनिमल्स को ओके कंज्यूम करते हैं. Plants, especially aquatic plants, are eaten by animals like duck, fish, etc. Okay, duck, fish दूसरे plants को खाते हैं जो water में present होते हैं. Then carnivorous plants like Nepenthes, Darlingtona, Dionaea, etc. consume insects and other small species for their food. And they adopt various methods to attract and catch their victims. Nepenthes is peacher plant. ओके, सो वी नो कि पीचर प्लांट के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट आता है तो वो क्या होता है, अपना फ्लैप बंद कर लेता है और फिर इंसेक्ट को क्या करता है, खा लेता है. ओके. देन नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन इज कॉम्पिटिशन. ओके, तो कॉम्पिटिशन क्या होगा, कॉम्पिटिशन दो स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा. दे विल कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज. So Darwin, in his famous work on the origin of species through natural selection, has highlighted the concept of struggle between species. Plants compete for light nutrients in forest. Okay, plants light nutrient के लिए compete करेंगे forest में, and animals for food and shelter. The competition may be intraspecific or interspecific. So intraspecific competition occurs between members of same population. सेम पॉपुलेशन के दोनों भी मेंबर हैं और उनके बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑकर्स बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. दोनों भी स्पीशीज डिफरेंट है और उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है. ओके, सो इट इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन. देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स मे बी फाउंड इटसेल्फ बाय केमिकल अग्रेशन और एलोपैथी. प्लांट्स में जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन पाया जाता है उसमें क्या होता है, कुछ प्लांट स्पीशीज है
ऐसे कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं ओके अपने सराउंडिंग एरिया पे। उससे क्या होता है कि दूसरे स्पीशीज़ के जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते ओके। तो इसे बोलते हैं एलोलोपैथी या केमिकल अग्रेशन। So thanks for watching my video. Subscribe to my channel. Hit the bell icon for getting latest video notification. This lecture series will be continued for CSIR NET, GATE, BARC, ICAR, ICMR, DBT, MSc and BSc.